Hello dear students, very good morning to everyone. Today I am going to discuss about geometric progression again. This is the lecture number 8. In the last lecture I have discussed few questions related to this particular topic. So to continue with this, I am going to solve another more questions, important questions in today's class. Okay. So the first question you see, the first question is the sum of first three terms of a geometric progression is 16 and the sum of next three terms is 128. Determine the first term, the common ratio and the sum of n terms of the GP. Okay, first three terms का sum क्या है 16 and the sum of the next three terms is 128. You have to find first term, common ratio and the sum of n terms of a GP. Okay, this is the question. So in this particular question you see there is no nothing is given about product of first three terms or first three terms of a geometric progression, ऐसा कुछ नहीं दिया है. तो लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम कराया था, वहाँ में प्रोडक्ट था. प्रोडक्ट होने से हम क्या करते, वी कैन सपोज दैट a by r, a and ar, these are the three terms of a geometric progression. I have given you an idea. Okay, now here it is not given the product, so sum दिया गया है. तो आप एज यूजली जैसे हम टर्म लेते हैं, व्हाट आर द टर्म्स लाइक ए देन ए आर स्क्वायर देन ए आर क्यूब देन ए आर टू द पावर 4 देन ए आर टू द पावर 5, व्हाट इज गिवन इन दिस वे, इट इज द टर्म कैन बी रिटन. ओके, आप लिख सकते हो. तो हमारा जो टर्म है, व्हाट इज द क्वेश्चन, ए योर टर्म विल बी व्हाट ए आर स्क्वायर. ओके, फर्स्ट थ्री टर्म्स देन ए आर क्यूब then AR to the power 4, then AR to the power 5. So according to question, their sum is what 16 and their sum is what 128. उन लोगों का सम क्या है, ये थ्री टर्म्स का फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम क्या है, सम क्या है 16 है. क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. सम फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम क्या है 16 है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम क्या है 128 है. दिस इज गिवन. ओके, so you write like that. You start with this manner. Let A be the first term and R be the common ratio. R with the what? Common ratio. Okay. According to question, first three terms A plus AR plus AR square is equal to what? 16. First three terms का sum क्या है 16 है. So you can write, take A common, 1 plus R square is equal to what? 16. This is relation number 1. Equation number what? 1. Again given that नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट ए आर स्क्वायर्स के बाद जो टर्म होगा क्या होगा, ए आर क्यूब देन ए आर टू द पावर 4 देन ए आर टू द पावर 5 इक्वल टू व्हाट 128. ठीक है, आप ए कॉमन ले सकते हो. यू कैन टेक कॉमन व्हाट ए आर क्यूब कॉमन ले सकते हो. ए आर क्यूब कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 128. दिस इज रिलेशन नंबर व्हाट 2. Now our aim is to find what A and R. हमें क्या निकालना है, A निकालना है. We have to find what A as well as what R. Okay. So what we will do here, this term and that term are what same. So हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे. Okay. Now equation 2 divided by equation 1. डिवाइड करने के बाद क्या लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड विल बी what, लेफ्ट हैंड साइड ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर और नीचे ये होगा ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर. ओके, डिवाइड कर दिया. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया है, तो राइट हैंड साइड इज सिमिलरली 128 बाय व्हाट 16. So from here you can write a cancel, this one and this one cancel, r cube is equal to what, it will be
8, ओके, एंड फाइनल कैंसिल करने के बाद क्या होगा, 8 होगा, एंड देन r क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 2 क्यूब, एंड यू कैन राइट r इज इक्वल टू व्हाट, 2. So finally what is the common ratio? Common ratio is r is equal to 2. Now putting the value of r equal to any of the equation, इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आसान होगा, इस इक्वेशन में पुट करो. इक्वेशन 1 implies, or you can like putting r equal to 2 in equation 1. r का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए तो क्या होगा, इट विल बी a इंटू 1 प्लस 2 plus 4 equal to what, 16. Is it right? I am putting r is equal to 2, then 2 square, yes, it is 7. Okay, a equal to what, 16 by what, 7. This is your a. Clear? Now in your question what is the demand? Demand is that first term निकालना है. First term तो हो गया, common ratio भी you have to find common ratio भी हो गया, and what is the next part? Next part is you have to find the sum up to n terms. Sum up to what, n terms. अब क्या करना है, निकालना है. So let us try to find the sum up to n terms. Okay, so Sn equal to formula क्या होगा, a into r to the power n minus 1 divided by what, r minus 1. Why I am taking this? Because r is equal to what, 2, which is greater than 1. Greater than 1 होने से sum ये होगा, ठीक है. So from here you can write a is what, 16 by 7, and r is what, 2 to the power n minus 1 divided by what, 2 minus 1, and finally you getting 16 by 7 into 2 to the power n minus 1. This is the sum. Option is find the sum of n terms of the sequence 8, 88, 888, 8888. Okay, this way sequence is given. So you have to find the sum of n terms of this particular sequence. Okay, so up to how many terms? Up to n terms, right? So you see the question. If you say let Sn be the sum of first n terms. First what? N terms. That is Sn equal to what? You have to find 8 plus 88 plus 888. In this go on up to what? n terms plus up to 2n terms. क्या है, n terms तक हमें sum निकालना है, ठीक है. Now you see, if you take 8 common, it will be 1 plus 1 plus 1 plus dot 2n terms. To what? n terms. Here we are going to do some innovations. Okay, I am dividing, this is multiplying. बाहर में क्या है, 1 by 9 से मल्टीप्लाई किया है और अंदर में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है. 2n terms. Okay, so if you take 9 common here, 9 and this 9 will be cancelled. Okay, and ultimately it will be remain same. Now this 9 can be written as, we can write 10 minus 1, 99 can be written as 10 square minus 1. These are a simple calculation. Okay, our target is to what, to this sequence is convert into what, geometric progression. Okay, and then apply the formula. 99 can be written as 10 cube. 10 cube means what, 1000 minus 1 लिख सकता हो, and in this way up to how many terms, 2n terms. Okay, I hope you are understanding. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सब 10 वाला जितना टर्म है एक साथ करो, 10 then 10 square then 10 cube then up to how many, n terms, 2n terms. हो गया, this is up to this. and next माइनस माइनस माइनस, सब में क्या है, 1 है, तो माइनस लिख के आप कॉमन लेके आप क्या लिख सकते हो, 1
plus 1 plus 1 to n terms. ठीक है. So here first I that is arrange all the term containing 10 वाला जितना कोई टर्म है वो सारे को मैंने अरेंजमेंट कर लिया है. बाद में माइनस कॉमन लेके बाकी 1 को एक साथ कर लिया है. सो ये 1 क्या है, 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, मीन n टाइम्स आप ऐड कर लो. कोई 1 को अगर आप 3 टाइम्स ऐड करो तो क्या होगा, 3 होगा. 4 टाइम्स ऐड करो क्या होगा, 4 होगा. n टाइम्स ऐड करो क्या होगा, n होगा. तो ये रिज़ल्ट क्या हो रहा है, n हो रहा है. और इस रिज़ल्ट में आके देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इस रिज़ल्ट क्या है, 10² बाई वाट 10 इज इक्वल टू वाट, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या, 10² बाई 10 इज इक्वल टू 10³ बाई 10². ओके, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है. क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू वाट 10 हो रहा है. बट 10 इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स व्हाट हैपन, इट इज़ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. बिकॉज रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इस दोनों में जो रेशियो है, इस दोनों में भी सेम रेशियो है, नेक्स्ट 2 में भी सेम रेशियो होगा. तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इट इज़ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड व्हाट इज़ द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज़ 10. इट इज़ r इज इक्वल टू 10. सो सिंस इट इज़ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, और कॉमन रेशियो भी 10 है. ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू वाट, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई वाट, r माइनस 1. दिस इज आवर फॉर्मूला, राइट. एंड इसमें a का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू वाट 10. दिस इज गिवन राइट फ्रॉम द पर्टिकुलर सीरीज. ओके. एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज r इज इक्वल टू ऑल्सो 10. सो हम फॉर्मूला में खाली पुट करें और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगी. ठीक है. तो और एक लाइन लिख सकते हो, यू कैन राइट 8/9. तो हम इस फॉर्मूला में अगर पुट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 10, एंड व्हाट इज r इज ऑल्सो 10, उसके ऊपर पावर n है, -1 डिवाइड बाई 10 - 1. आई होप यू अंडरस्टैंड. माइनस ये जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट क्या है, n है. ठीक है. सो लिटिल कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड ओनली. सो नेक्स्ट it will be what, 8/9. this is what 10 - 1 is equal to what, 9 होगा ना. तो हाँ, ऐसा लिख सकता हूँ. दिस इज what 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई what, 9 माइनस n. ओके, सेकेंड ब्रैकेट हियर, थर्ड ब्रैकेट दे देना. ठीक है. दिस इज द फाइनली योर nth टर्म. दिस इज योर Sn. ओके, Sn इक्वल टू दिस वन. होप दैट यू अंडरस्टैंड. सो इस टाइप की प्रॉब्लम में अगर 8 के जगह में 7 दिया जाए, 6 दिया जाए, 9 दिया, वॉट एवर भी गिवन. ओके. तो आप मेथड कैसे यूज करेंगे, पहले 1 1 बनाना है, फिर 9 बनाना है सबको, इसके बाद आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जा सकते हो. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके. Next question, if the first term and nth term of a geometric progression are a and b respectively, and if p is the product of n terms, prove that p square is equal to a b to the power n. You are going to prove it. First term and nth term of a geometric progression is given, and their product of n terms is also given. So here first term equal to a, and suppose that common ratio equal to what, r. Say we suppose that common ratio is equal to what, r. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें nth टर्म दिया गया है, also nth टर्म is equal to what, nth term is equal to what, b given. And what is the nth term of a geometric progression? If you know the first term and common ratio, it is a into r to the power n minus 1 is equal to what, b. Suppose this is relation number 1. ठीक है. तो अभी हमें प्रोडक्ट निकालना है. What is product? Again given product is what, e equal to product of first n terms. First term a, then second term a, third term a square. In this way
the next term is a r to the power n minus 1. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप देखिए a हाउ मेनी टाइम मल्टीप्लाइज, देयर आर n टर्म्स, सो a कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया है, a विल बी मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स, so you can write a into a, how many times, n times, okay, and next you can write into, this is bracket, r का पावर इधर क्या है 1 है, तो 1 से शुरू होगा r, then r का पावर 2 है, प्लस 2, then plus 3, dot, finally what, n minus 1. ठीक है, so this is sum of first n minus 1 terms, right? This 1 plus 2 plus 3 plus dot n minus 1, जो हमें इंडक्शन हाइपोथेसिस था, उस इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या किया था, हमने एक पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रूफ किया था, जैसे 1 plus 2 plus 3 plus dot n क्या होती थी, n into n plus 1 divided by what, 2. ये हमने प्रूफ किया था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसमें सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर, सो इसमें n से खत्म हुआ तो रिजल्ट क्या है, n then n plus 1. इसमें लास्ट टर्म क्या है, n minus 1 है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट n minus 1, नेक्स्ट क्या होगा, n minus 1 plus 1, n minus 1 plus 1 क्या है, n minus 1 plus 1 मीन्स n होगा डिवाइडेड बाई 2. तो ये रिजल्ट जो है उसका, ये जो सम है इसका रिजल्ट क्या होगा, n minus 1 into n divided by what, 2. ओके, so we can write is equal to p equal to, हमें क्या मिल रहा है, a how many time multiplied, n times, so it can be a to the power n, आपको पता है, into what, r, और ये जो रिजल्ट किया था हमने अभी किया है, n minus 1 into n डिवाइड बाई what, ठीक है, दिस इज p. तो हमें रिजल्ट में जो प्रूफ करना था, हमें p स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग कीजिए, p स्क्वायर इक्वल टू a to the power n into r to the power n into n minus 1 divided by 2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, this is equal, p square is equal to, you separate it, you know a to the power n whole square means a to the power twice n, and it can be what, r to the power n into n minus 1 divided by what, 2 होल स्क्वायर. ठीक, तो आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों को पता है ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ठीक है, ऐसा सेपरेट किया है मैंने, तो ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, इसके बाद ये हो जाएगा ए टू द पावर ट्वाइस एन इंटू आर टू द पावर व्हाट, एन इंटू एन माइनस 1. ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, इट विल बी p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वी कैन राइट a to the power twice n as a to the power n into a to the power n into n is out, and it is r to the power n into n minus 1 already is there. Okay, and these two term can be written as, दोनों टर्म को क्या लिख सकता हो, ये दोनों टर्म को क्या लिख सकता हो, देखिए, you can write a r to the power n minus 1 whole to the power n, आप लिख सकते हैं आराम से. तो ये क्या होगा, a to the power n and it will be r to the power n minus 1 into n हो जाएगा. तो आप ये दोनों टर्म को ऐसा लिख सकते हो. एंड अभी अगर आप कुछ जो रिलेशन नंबर 1 है उसको यूज़ करें, तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट, b. तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n, ये क्या लिख सकते हो, b, तो उसके ऊपर पावर क्या है, n है. तो फाइनली आई थिंक दिस इज योर रिजल्ट, p स्क्वायर इज b होल टू द पावर n. इसमें लिख लो यूजिंग
यूजिंग व्हाट वन, हमने यूज़ किया है रिलेशन नंबर 1. Hence finally we achieve our desired result. Okay, so follow the technique and try to prove the particular relation. Okay, this is the question. You see, if A, B, C, D are in GP, the 4 numbers are given, they are in GP, you have to show that that is 2 expression is given. ये दोनों expression left hand side is equal to what? You have to go show right hand side. Okay, so starting with the condition of GP, so the question is A, B, C, D are what? Are in GP. Okay, therefore you can write B by A, common ratio क्या होगा? सेम होगा. C by consecutive terms का रेशियो क्या होगा? सेम होगा. D by C इक्वल टू R से. ओके, हमने R सपोज किया है कॉमन रेशियो, तो इसमें B इक्वल टू व्हाट? B इक्वल टू व्हाट? AR, C इक्वल टू व्हाट? BR, D इक्वल टू व्हाट? CR होगा. ओके, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें सबको. देयर इज B कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट? AR. इफ यू रिप्लेस B बाय AR, तो AR इंटू R क्या होगा? AR स्क्वायर होगा. और इसमें अगर आप C का वैल्यू AR स्क्वायर पुट करें तो इट बिकम्स व्हाट? AR क्यूब. ठीक है, तो फाइनली योर B इक्वल टू AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर एंड D इक्वल टू व्हाट? AR क्यूब. ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. वैल्यू पुट करें, आई मीन वैल्यू क्या होगा? ए तो ठीक है, A स्क्वायर रहेगा. B कैन बी रिटन एज व्हाट? A स्क्वायर R स्क्वायर and C can be written as what? A square R to the power 4. Okay, and this figure B can be written as what? तो उसको B square करेंगे, A square R square. Okay, and C can be written as A square R to the power 4. स्क्वायर करिए, स्क्वायर कीजिए, और D can be written as what? स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? A square R to the power 6. ठीक है, सो आप क्या कॉमन ले सकते हो? आप इसमें A स्क्वायर कॉमन आएगा और इसमें क्या आएगा? A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन आएगा. मिनिमम टर्म क्या है? A स्क्वायर R स्क्वायर, और इसमें मिनिमम क्या है? A स्क्वायर. तो A स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो. इसमें A स्क्वायर आएगा, इसमें A स्क्वायर R स्क्वायर आएगा, तो हमें A टू द पावर 4 R स्क्वायर हो जाएगा. थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करें. A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन लेंगे. दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? A टू द पावर 4 इंटू R स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी 1 प्लस, हमने R स्क्वायर A स्क्वायर कॉमन लिया, R स्क्वायर एंड इसमें रहेगा R टू द पावर 4. ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें होगा 1 रहेगा, इसके बाद R स्क्वायर रहेगा, और इसमें भी क्या होगा? R टू द पावर 4 रहेगा. ठीक है, तो बाद में क्या है? ये दोनों टर्म तो सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो आपका क्या हो रहा है? इस A टू द पावर 4 R स्क्वायर, और बीच में ये क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? 1 प्लस R प्लस R1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 होल स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दिस विल मल्टीप्लाइड एंड यू गेट दिस रिजल्ट. तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. मॉडिफिकेशन ऐसा होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर R इंटू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 होल स्क्वायर. कैन आई राइट दिस? सो आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर आप ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, तो क्या होगा? A स्क्वायर R होल स्क्वायर होगा, और अल्टीमेटली ये मिल जाएगी, और ये क्या होगा? 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा अरेंजमेंट है, आपको शायद समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं होगा. तो इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दीजिए A स्क्वायर R
plus a square r cube plus a square r to the power, this is a square, okay, a square r to the power 5 whole square. Okay. Now we will do some arrangement here like that. थोड़ा सा arrangement, a square r can be written a into ar. Understood? What is AR? AR equal to B. तो ये क्या बन जाएगा? AB हो जाएगा. तो हमें चाहिए AB. That's why I am doing like that. Okay. Similarly इसको क्या लिख सकता हूँ? BC है ना? ये BC है. BC मिलने के लिए AR into what? AR square लिख सकता हूँ. तो आप क्या बन जा रहा है? एक ए स्क्वायर हो रहा है और आर क्यूब हो रहा है. ये भी ये क्या होगा? फ्रॉम दिस रिजल्ट ए आर इक्वल टू व्हाट योर देयर इज बी एंड ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट योर सी. सो यू विल गेट दिस टर्म. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सिमिलरली ये टर्म होगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब. ओके, ये आर के होगा. ठीक है, होल स्क्वायर. तो फाइनली क्या हो रहा है? a इंटू ए आर. ए इंटू ए आर क्या है? इस टर्म को थोड़ा सा और वहां से लिखे. a इंटू ए आर देन ए आर स्क्वायर into a r into a r square, then a r square into a r cube. Okay, whole square. I hope you understand. Now this equal to a r is equal to what? From here b can replace b, a b. This is b and this is c. This is C and this is what? D. Whole square. Okay, and which equal to what? Right hand side. Hope you understand. Okay. So in these questions from this step, ये जो इतनी स्टेप तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. वहाँ से आप जब दिस स्टेप से ये जो स्टेप तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से फ्रॉम दिस स्टेप टू दैट स्टेप यू शुड रिमेम्बर. आपको थोड़ा सा याद रखना है और हमें मार्क करके रखिए, क्योंकि हमें ये उसको क्या है ब्रैकेट के अंदर क्या है लेना है और एज ए होल स्क्वायर लेना है. इसके बाद मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद उसको अरेंजमेंट करेंगे. ये भी स्टेप याद रखना होगा. थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते. एग्जाम में आप फंस जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टेप में. आप भूल जाएंगे कि उस स्टेप से क्या होने वाला है और फिर इस स्टेप से स्टेप्स में जाना है वो भी आपको भूल सकते हो. इसीलिए ये दोनों स्टेप में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई मार्क करके रख देना. स्टार मार्क के स्टार, जिस स्टार मार्क करके रखो, so that whenever you are going to practice then you have to look into this particular two steps. तो ये दोनों स्टेप अगर आपको याद में रह जाए तो बाकी ऑटोमेटिकली होगा. ये तो सिस्टमेटिकली हो रहा है. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. See, the question is the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. You are to show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. आपको दो नंबर दिया गया है. सपोज नंबर्स आर ए एंड बी. दोनों का साम क्या है? गिवन दैट दोनों का साम क्या है? 6 इंटू व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर के बीच ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? रूट ओवर ए बी. फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था. तो ये गिवन है. वहाँ से आप क्या करना चाहते हैं? यू आर गोइंग टू प्रूव दैट टू नंबर का जो रेशियो होगा ए इज टू बी इक्वल टू व्हाट? 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू व्हाट? 3 माइनस 2. यू आर गोइंग टू प्रूव इट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज योर टारगेट एंड दिस इज गिवन. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स. सपोज दैट a by b, a upon b is equal to what? C upon d. That is a is to b is equal to what? C is to d. From here a particular property, this property जो होती है यह यहाँ से क्या हो गया? देखो a plus b means numerator plus denominator is written in numerator
divided by numerator minus denominator, this is a minus b. Similarly same pattern in the right hand side also. लेफ्ट हैंड साइड में जो किया है राइट हैंड साइड में सेम किया है. दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो. कंपोनेंडो एंड इसका नाम क्या है, डिवाइडेंडो. आप लोगों को स्कूल में मिला है ये, थोड़ा सा मैंने जस्ट रिकॉल किया है. ओके, जस्ट रिकॉल किया है such that you can understand better. Okay, so let us start to solve the question. So you suppose that let a and b are two numbers. So according to the question, what is given? A plus b equal to what? 6 into root over 8. तो वहाँ से हम थोड़ा सा इसमें टेक्निक यूज करेंगे. विल डू लाइक दैट a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट ए बी इक्वल टू 3. लिख सकता हो कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 रूट ए बी होगा. नाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो. ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में क्या था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए डिवाइड बाई क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर a प्लस बी माइनस 2 रूट ए. ओके, हियर आई एम अप्लाइंग लेफ्ट हैंड साइड में जो पैटर्न दिस प्लस दिस, तो न्यूमरेटर में लिखते हैं दिस माइनस दिस रिटन इन द डिनोमिनेटर. ओके, सेम पैटर्न टू बी रिटन इन द राइट हैंड साइड, 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1. तो what method I have applied? देखो, using componendo and dividend, ये लिखना पड़ेगा. ठीक है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंड. तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, हमें क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर एन ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करना है. ये जो 2 इंटू रूट ए बी है इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी. ये सुनो, लिख सकता हूँ. तो इसको लिख सकता हूँ रूट ए होल स्क्वायर, यू कैन राइट रूट ए होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर. लिख सकता हूँ कि नहीं, रूट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए, रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बी. एंड इसको लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी. तो ये क्या बन रहा है, इफ यू कंसीडर दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए व्हिच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर टाइप. सिमिलरली डिनोमिनेटर इज आल्सो रूट ए होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी. लिख सकता हूँ, ठीक है, वी कैन राइट इट. एंड दिस राइट हैंड साइड विल बी 4 बाई व्हाट, राइट हैंड साइड इज व्हाट 4 बाई 2 मीन्स व्हाट, क्या होगा 2 होगा. राइट हैंड साइड व्हाट 2. ठीक है, तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, फॉर्मूला यूज करें रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये दोनों को एज ए होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ कि आराम से लिख सकता हूँ. और लिखने के बाद अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो मैं थोड़ा सा स्टेप को 2-3 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ. प्लीज कोऑपरेट, आप लोगों को समझ में आएगी, थोड़ा लंबा हो जाएगी प्रॉब्लम. ओके, रूट ए माइनस रूट बी क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, रूट 2. रूट 2 होगा कि नहीं, इट इज व्हाट रूट आफ्टर टेकिंग स्क्वायर. ओके, तो उसका पूरा होल स्क्वायर कर दिया, इसके बाद स्क्वायर कर दिया. तो रूट 2 के नीचे भी क्या है, 1 है. लिख सकता हूँ कि नहीं. सो आई एम गोइंग टू फाइंड व्हाट, अगेन आई एम गोइंग टू यूज अगेन कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो. ओके, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को फिर यूज कर रहा हूँ सच दैट आई एम रीचिंग एट ए एंड बी. ओके, फाइनली ए एंड बी में रीच करना है. यूज करिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो. अगेन यू सी यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. फिर कीजिए, क्या होगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी. ऐड किया है
सिमिलरली क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, रूट ए प्लस रूट बी माइनस, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, रूट ए होगा, और ये माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस होगा, रूट बी होगा। ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम पैटर्न में होगा, रूट टू नीचे क्या है, प्लस 1 है, डिवाइड बाई रूट टू नीचे क्या है, 1 है, उसको माइनस होगा। अंडरस्टूड। तो ये कंपोनेंट टू एंड, यूजिंग कंपोनेंट टू एंड डिवाइड लिख लेना आपने। ठीक है, इस स्टेप में लिखेंगे यूजिंग कंपोनेंट टू एंड डिवाइड। तो इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, दिस वन कैंसिल, ए कैंसिल, तो हमें क्या रह रहा है, 2 रूट ए डिवाइड बाई 2 रूट बी is equal to root 2 plus 1 divided by what, root 2 minus 1. Okay, so this one and this one what, cancel. तो अभी a is to b निकालने के लिए होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a by b, और इसमें क्या होगा, रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बहुत सकती है, ठीक है, स्क्वायर, आई भी लिख दे स्क्वायरिंग। ठीक है, सो उसको अगर कैलकुलेशन करें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2, ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस बी होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फाइनली हमें अपने टारगेट में पहुंच गए, तो फाइनली ए टू बी इज इक्वल टू व्हाट विल बी द रिजल्ट, a is to b, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, a is to b, एंड राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, 3 प्लस 2 रूट 2 हो रहा है कि नहीं, और ये क्या आ रहा है, 3 माइनस, टू दीजिए 3 माइनस 2 रूट 2। सो फाइनली वी फाइंड द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस 2 रूट 2 is to 3 minus 2। okay, so very interesting question, just calculation is there, we are using what, component and dividend in this particular question, and this part, and finally little arrangement is required, technique is required to solve such questions. Okay, important one for you. Okay, this is the last question of today's class. Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is JP. Okay, तो 3 and 81 के बीच आप 2 नंबर को इंसर्ट करना है, such that together this 3, 81 and other 2 numbers, this means 4 numbers form a geometric progression. ये कंसेप्ट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट है, जो मैंने आप लोगों को पहले क्लास में दिया था। ठीक है, तो देखिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला जो क्लास है, आई थिंक लेक्चर नंबर 6 में है, तो वहाँ में हमने आप लोगों को समझाया था, ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो लिख ले हम, लेट G1 and G2 are 2 numbers inserted between what, between 3 and 81। मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया मिले, वरना क्या है, आप भी खुद लिख सकते हो, आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, सच दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, देयरफॉर क्या होगा, 3 G1 G2 and 81 are in G, it is according to the question। okay, are in what, G। तो फर्स्ट टर्म क्या है, first term a equal to what, 3, and the last term, and the last term क्या है, first, second, third, fourth term, and the fourth term equal to what, 81। ठीक है, तो आप nth टर्म के बारे में तो पता है, nth टर्म क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो a है, सो a इंटू आर टू द पावर 4 minus 1 means 3 equal to what, 81। what is r, mention r common ratio,
इट इज ए कॉमन रेशियो, ठीक है। अब लिख के रखिए साइड में, R is the common ratio. Now what is the value of A equal to what? 3. So 3 R cube is equal to what? 81. From here you can write R cube is equal to what? 27 equal to what? 3 cube, और फाइनली R is equal to what? So आपका क्या है? कॉमन रेशियो क्या है? 3 है। तो आपको क्या निकालना है? आपको G1 G2 निकालना है। Therefore G1 क्या है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं? इफ इट इज A then second term will be AR, third term will be what? AR square in this way. Okay, तो G1 क्या होगा? AR होगा, A कितना है? 3 है, और ये R भी 3 है, तो ये 9 होगा, and G2 will be AR square means 3 into क्या है? 9, आपका क्या आ रहा है? 27 हो रहा है, ठीक है। So I hope you understand this is a very simple question, but such type of questions are usually asked in the examination. Okay. So in this class I have solved almost 5-6 questions today, and it is not possible for me to solve all the questions. You try your level best to solve other questions, all other questions, and complete the chapter. Okay. And I will give some homework to you and try to solve this homework also. And with all the best, I conclude here. Thank you very much and have a good day ahead.